Hey everyone, this is me Advocate Papia. I welcome you all in my channel Decode the Law and topic for today is Hindu Marriage Act 1955. ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाला है एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और अगर आप लॉ पढ़ रहे हो मतलब प्रेजेंटली आप लॉ स्टूडेंट हो और जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और इन फ्यूचर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हो then this video is for you because in this video I'm going to tell you certain techniques so that आप लॉ पढ़ने के साथ साथ जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन ले पाओ। पहले तो आपके लिए एक चीज़ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज जुडिशरी में आप जो पढ़ोगे लॉ में आप जो पढ़ रहे हो वो तो कुछ अलग है नहीं बट येस देर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू नीड टू फॉलो और देर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर स्टडी सो दैट आप एक साथ प्रिपरेशन कर पाओ। प्रेजेंटली कोई लॉ स्टूडेंट हो देन लॉ में जो ऐसा सब्जेक्ट्स है वो जुडिशरी में भी कॉमन है दैट इज लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एट्सेट्रा। एंड मैं आपको बताऊंगी इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है ताकि आपका प्रिपरेशन एक साथ ही हो जाए। मतलब पहले से ही आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ ही हो जाए। I will tell you what are the techniques and what are the strategy to read these subjects. And one more thing, judiciary एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें it takes a lot of time and precision is very much needed in order to clear concept of a particular provision of law. So conceptual clarity to clear this exam is much more needed than anything else. Then comes to framing of answer. So framing of answer is something that is the key towards the success. I will tell you how to frame the answer in the examination and in this video I am going to discuss about Hindu law and this is basically an introductory class. Matlab in this lecture I will discuss who are Hindus, what is the nature and concept of Hindu law and what is the origin and what is its connection with regard to dharma. So these are the points I am going to discuss this one by one. So let's get started. So now we understand the concept of Hindu law and what is the connection with regard to dharma. Hindu law is a body of principles or rules called dharma. So Hindu law क्या है? ये एक body of principles or rules that is called dharma. Dharma according to Hindu text embraces everything in life. मतलब ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ जो कुछ चीज़ होता है वो एम्ब्रेस किया जाता है धर्मा के साथ। According to Hindus, dharma include not only what is known as law in modern sense, but all the rules, good and proper human conduct. Dharma मतलब धर्म ये टर्म इंक्लूड होता है not only in the modern sense that what is known as law, but also it includes human conduct. जो human conduct होता है, जो human behavioral aspect होता है, वो धर्म में इंक्लूड होता है। The term dharma is derived from the root dhri. सो धर्मा कहाँ से आया है? द टर्म ध्री इससे आया है, ठीक है, एंड विच मीन्स टू सस्टेन और अपहोल्ड। सो अकॉर्डिंग टू पाणिनि, सो पाणिनि कौन है? पाणिनि वाज अ संस्कृत ग्रामरियन। इनका इंटरेस्ट था इंडियन फिलोसॉफी पर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाणिनि धर्मा एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस मेरिट, कस्टम एंड यूजेज। सो धर्मा इंक्लूड क्या करता है? रिलीजियस मेरिट, कस्टम एंड यूजेज को इंक्लूड करता है। So thus, dharma came to mean morally proper, ethical duty, religious virtue, ideal absolute truth, universal law, divine justice, conventional code of customs and traditions. So धर्मा में कौन सा चीज़ इंक्लूड होगा? यूनिवर्सल लॉ, morally proper, ethical duty, religious virtue, ideal, absolute truth, customs, traditions, justice, divine justice, etc. These are the things ये धर्मा में इंक्लूड होगा। सो धर्म इज यूज टू मीन जस्टिस और न्याय। सो जो न्याय होता है इसको मतलब इंटरप्रेट करने के लिए द टर्म धर्म यूज किया जाता है। सो व्हाट इज राइट इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस, मोरल, रिलीजियस, पायस और राइचुअस कंडक्ट। सो क्या सही है, क्या गलत है, गिवन इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, मोरल, रिलीजियस, पायस और राइचस कंडक्ट जो है इसको डिफाइन करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए द टर्म धर्मा यूज किया जाता है। सो धर्मा बेसिकली इंक्लूड्स ह्यूमन कंडक्ट, बिहेवियरल अप्रोच,
मोरली प्रॉपर जो कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है, इन सारा चीज़ों को डिफाइन और इंटरप्रेट करने के लिए द टर्म धर्मा यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू अनदर कंसेप्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। आपको जुडिशियरी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। सो अकॉर्डिंग टू मनु, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ धर्मा और लॉ इज वेदा। जो वेद होता है, वेद से धर्म का जन्म हुआ है, ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मनु। ओके, सो वेदास आर ऑफ डिवाइन ओरिजिन। सो वेदास का ओरिजिन क्या है? ये डिवाइन ओरिजिन है। हैविंग बीन रेलिवेशंस फ्रॉम ऑल माइटी। सो ऑल माइटी कौन है? ऑल माइटी इज सुप्रीम पावर, उनसे ही वेदास का जन्म हुआ है। ठीक है, सो वेदास आर ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ऑस्टिन कॉल्स देम द लॉज ऑफ गॉड। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, वेदास क्या है? वेदास the laws of gods. In Vedic hymens, the word rim is generally used to denote law. In Vedic hymens, rim, R-I-M, rim, ये term को use किया जाता है to denote the term law. ठीक है? So R-I-T-A, Rita. Now what is Rita? Rita is cosmic order. So what is Rita? Rita is cosmic order, the ordered course of things in the universe. So what is it? It is the ordered course of things in the universe. Okay? So, Rita also means moral order in the individuals in society. So, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स का मोरल ऑर्डर होता है वो मतलब कंडक्ट करता है रीता। ठीक है, ये सारा जो टर्म यूज़ किया गया है रीता, रिम, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो नाउ रीता इज सूर्या। सो व्हाट इज रीता? रीता इज सूर्या। रीता फर्निशेस द मेजर्स ऑफ मोरल। जो मोरल्स होता है उसको फर्निश करता है कौन? Rita. Now, side by side, Vedic Rita, the concept of dharma was also evolved, specially by Manu Dharma, or according to Hindu text embraces everything in life. So, dharma का कैसे evolve हुआ? धर्म का evolve हुआ specially by Manu Dharma, ठीक है, और बाय लॉ अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट। जो हिंदू टेक्स्ट होता है, जो बुक्स होता है, एंड विच इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग इन ह्यूमन लाइफ। एवरीथिंग इन लाइफ मतलब जो सारा चीज़ होता है जीवन में, उन सारा चीज़ों को एम्ब्रेस करके हिंदू लॉ और धर्म का जन्म हुआ है। धर्म इज अ वर्च्यू एंड enables people to attain moksha. So dharma is something which enable people to attain moksha, that is salvation. Okay, so Hindu law means all the civil, criminal, substantive and procedural of the ancient Hindus as laid down in the Smritis and commentaries sanctioned by usage. So हिंदू लॉ इनकॉर्पोरेट्स क्या करता है? मतलब एंशियंट हिंदू लॉ में जो स्मृति एंड कमेंटरीज में बोला गया है एंड विच इज सैंक्शन बाय यूजेज। यूजेज मतलब क्या? जिसको मतलब डेली लाइफ में करते हैं, वो सारा बिहेवियरल एस्पेक्ट, एंड दैट वाज एंशियंट कंसेप्ट। नाउ लेट्स कम टू अनदर एस्पेक्ट, दैट इज व्हाट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ हिंदू लॉ। सो व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ हिंदू लॉ? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जुडिशियरी में पूछा जाता है, एंड इवन इन योर लॉ एग्जाम आपको पूछा जाएगा हिंदू लॉ पेपर में दैट व्हाट इज नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, सो हिंदू लॉ हैज़ राइटली बीन ऑब्जर्व्ड हैज़ मोस्ट एंशियंट पेडिग्री ऑफ एनी नोन सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। मतलब हिंदू लॉ सबसे पुराना, सबसे एंशियंट लॉ है। हाउएवर इट इज़ नॉट लॉ एज अंडरस्टूड बाई मॉडर्न टाइम्स। मतलब मॉडर्न टाइम्स में हम लोग जिसको लॉ समझते हैं वो नहीं है। टुडे द वर्ड लॉ सिग्निफाइज एन एक्ट पास्ड बाई लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। मतलब एट द प्रेजेंट टाइम हम लोग कौन सा चीज़ को लॉ बोलते हैं? जो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ने पास किया है, इंडियन पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है, हम लोग उसको ही लॉ बोलते हैं, राइट? सो ancient Hindu law, however, is not the result of such legislation governing the Hindus. So, ancient Hindu law जो होता है वो legislation से द्वारा पास किया गया लॉ नहीं है जो कंडक्ट करता है हिंदूज को। ठीक है, सो हिंदू लॉ इज सपोज टू बी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन एंड बीइंग derived फ्रॉम द वेदास। जो वेदास से आया है, विच आर रेलिवेशंस ऑफ द ऑलमाइटी हिमसेल्फ। मतलब ऑलमाइटी खुद इसको तैयार किया है। ठीक है, law as understood by Hindus is a branch of dharma, that is the duty and the rules of conduct, moral, religious and political employed by God on the Hindu community. So law जो हिंदू समझते हैं वो क्या है? वो एक ब्रांच ऑफ धर्मा है। सो अकॉर्डिंग टू हिंदूस मतलब जो हिंदू कम्युनिटी है वो धर्म मतलब समझते हैं एक ब्रांच ऑफ धर्मा।
जो लॉ मतलब समझते हैं एक ब्रांच ऑफ धर्मा, सो लॉ मतलब एक धर्मा का ब्रांच है, ठीक है। एंड इट इनकॉर्पोरेट्स ड्यूटीज, रूल्स ऑफ कंडक्ट। सो रूल्स ऑफ कंडक्ट जो होता है, जो मोरल कंडक्ट होता है, रिलीजियस पॉलिटिकल कंडक्ट जो होता है, इनजॉइंट बाय गॉड ऑन द हिंदू कम्युनिटी, इसको लॉ बोला जाता है। नाउ इट्स एंशिएंट फ्रेमवर्क इज द लॉ ऑफ स्मृति विच डिक्लेयर्स द रूल्स ऑफ धर्मा। नाउ व्हाट इज स्मृति? We will discuss the concept regarding स्मृति slowly and steadily in the later videos. आप सिर्फ ये याद रखें दैट स्मृति मतलब एक लिटरेचर है एंड दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन मेमोरी। दैट जो एंशिएंट फ्रेमवर्क था धर्म का वो स्मृति से आता है, ठीक है। सो एंशिएंट फ्रेमवर्क इज द लॉ ऑफ द स्मृति विच डिक्लेयर्स द रूल्स ऑफ धर्मा। जो रूल्स ऑफ धर्मा है उसको डिक्लेयर करता है, ओके। एक लिटरेचर है जो डिक्लेयर करता है जो रूल्स ऑफ धर्मा है उसको। Now, Hindu law as understood in ancient times was not the command of the political sovereign of a community. मतलब एंशियंट टाइम में हिंदू लॉ को जो समझा जाता था वो कोई पॉलिटिकल सॉवरिन का कमांड नहीं था, ओके। रादर इट वाज अ कमांड ऑफ द सुप्रीम बीइंग एप्लीकेबल बोथ टू द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, द रूलर एंड द रूल्ड। सुप्रीम बीइंग मतलब जो किंग है उनको इफेक्ट करेगा, किंग का जो सब्जेक्ट्स है मतलब जो प्रजा होते हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स द रूलर एंड द रूल्ड, मतलब जो रूल बनाता है एंड जो लोग रूल को फॉलो करते हैं वो लोग भी इस कमांड को फॉलो करेंगे, उनके ऊपर भी ये कमांड लागू होगा, ओके। हिंदू लॉ वाज एट नो टाइम स्टैटिक एंड स्टेड बट वाज एम्पिरिक एंड प्रोग्रेसिव। सो हिंदू लॉ इज समथिंग वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, और स्टेड नहीं है, ये एम्पिरिक है एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट सिनेरियो। दैट इज टुडे सच अ डेफिनेशन ऑफ हिंदू लॉ कैनॉट बी होल्ड गुड, ओके। सो प्रेजेंट में जो हम हिंदू लॉ के डेफिनेशन देते हैं वो एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ हिंदू लॉ हैज़ बीन नाउ कोडिफाइड। सो लार्ज पोर्शन ऑफ हिंदू लॉ जो था वो कोडिफाइड हो चुका है, ओके। पहले जो हिंदू लॉ था हम लोग समझे वो ऑल माइटी क्रिएट किया था, वेदास से आया था, मनुस्मृति बोलता है जो ह्यूमन कंडक्ट को इनकॉर्पोरेट करता है, ये सारा जो अनकोडिफाइड था, राइट। नाउ द लार्ज पोर्शन ऑफ हिंदू लॉ हैज़ बीन कोडिफाइड एंड इज मेनली टू बी फाउंड इन द फॉलोइंग 4 एक्ट्स। जो फॉलोइंग 4 एक्ट्स है यहाँ पर मैंने जो लिखा है ये सारा 4 एक्ट्स जो है वो कोडिफाइड करके मतलब हिंदू लॉ को कोडिफाइड करके लाया गया है, ठीक है। सो नंबर 1 इज दैट हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये सारा जो 4 एक्ट्स है इन सारे 4 एक्ट्स मतलब ये 4 जो एक्ट्स है जो हिंदू बाय बर्थ है मतलब वो जन्म से हिंदू है, हिंदू धर्म ग्रहण किया है, उन सारे लोगों के ऊपर ये 4 एक्ट लागू होगा, ठीक है, मतलब एप्लीकेबल होगा। These 4 act very much important for a Hindu for the purpose of marriage, minority and guardianship, succession, adoption and maintenance. So in these purposes अगर कोई हिंदू है वो ये सारे एक्ट से गवर्न होंगे। Now let's come to the concept of what is the meaning of Hindu. Now let's understand the meaning of Hindu. मतलब जो 4 एक्ट्स मैं अभी बताई वो 4 एक्ट्स किसके ऊपर लागू होगा? हिंदू के ऊपर लागू होगा, मतलब जो इंसान हिंदू है उनके ऊपर लागू होगा। At this point of time, it is very much important to understand that who is Hindu. So let's understand it. The term Hindu has not been defined in its significance. मतलब जो हिंदू टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। It has been nowhere been defined or explained. इसको डिफाइन भी नहीं किया गया है एंड एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। In fact, it is not to be found in any of the ancient Sanskrit text. जो ancient संस्कृत जो टेक्स्ट होता है जो बुक्स होता है उनमें भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। Some consider that the word Hindu is derived from the river Sindhu, otherwise known as Indus, which flows from Punjab. मतलब कुछ लोग समझते हैं दैट हिंदू इस टर्म का ओरिजिन हुआ है जो सिंधु रिवर होता है और अदरवाइज नोन एज इंदुस जो पंजाब से फ्लो करता है, उस रिवर से ये टर्म हिंदू आया है। सो द वर्ड सिंधु वॉज प्रोनाउंस्ड बाई द पर्शियंस एज हिंदू। जो पर्शियंस थे वो सिंधु को प्रोनाउंस करते थे एज हिंदू, वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो हिंदू करके बोलते थे। एंड आर्यर्स
who had settled near that river called Hindus. मतलब जो आर्यंस थे वो लोग रहते थे नियर द सिंधु रिवर एंड वो लोग बोलते थे एज हिंदूज. ओके. द ग्रीक्स लेटर ऑन ड्रॉप द हार्ड एस्पिरेट एच एंड प्रोनाउंस्ड इट एज इंदॉय. मतलब ग्रीक्स जो थे वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग एच का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लोग नहीं कर पाते थे. ठीक है. दैट्स वाई वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग इंदॉय इंदॉय करके बोलते थे. विच हैज़ बीन चेंज्ड एज इंडिया एंड बिकम द नेम ऑफ आवर कंट्री. सो द टर्म इंडिया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ग्रीक्स एच को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे इसलिए वो लोग इंदॉय इंदॉय करके बोलते थे एंड दैट हैज़ बिकम इंडिया एंड इट हैज़ बिकम नेम ऑफ आवर कंट्री इंडिया. सो दैट इज़ द हिस्ट्री. इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हिंदू, हु इज़ हिंदू, व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ द हिंदू, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ. ये पहले अनकोडिफाइड था, देन इसको कोडिफाइड किया गया. जो मेजर 4 एक्ट्स है वो मैंने आपको बताई. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट वाइल राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन. एंड अगर आप इन सारे पॉइंट्स को आपके आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो देन आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल फेच मोर मार्क्स. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. I will see you on the other side. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning new things. Thank you so much for watching this video.